Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you are doing well, staying healthy, staying safe, and rooting for Sushant Singh Rajput, as well as standing up for anybody who deserves support, who has been wronged, and who really needs a voice or support. So, hello, hello, hello. Welcome, everyone, after a long, long time. Uh, and we will talk about that, Kamini ji. So, hello, namaste, hello, Ashish. How are you? Good, good to see you. Hello, Sarita ji. Hello, Simiraman ji. Hello, NK. No, not 11 p.m. Pacific. It is CST now. I थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में. And hello, Varuni. Hello, hello, hello. Hello, Afna Vlogs. Hello, David. And hello, hello. So, सबसे पहले, yes, I've been out and about. I've been away for about 2 weeks, and due to some personal reasons, and I'm happy to be back. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होके और भी अच्छा लग रहा है. आपके बहुत मैसेजेस, आपके सारे कमेंट्स, और मैंने एक्चुअली ट्विटर डिस्कनेक्ट किया हुआ था, बट आई एम सो ग्लैड दैट पीपल रीच्ड आउट. एंड अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी किसी से फ़ोन पे बात हुई, एंड it feels so good to be connected. And I always say कि I thank Sushant not only for awakening us all, या मेरे को especially, but also for giving me this opportunity, for giving me this platform, or जिसके through I've been able to connect with so many people. And so it is a blessing. It is something which I have high regards for, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना थोड़ा सा the sense of responsibility I feel. Uh, yes, Simiji, I was completely out of social media, चाहे वो WhatsApp हो, चाहे वो Twitter हो, चाहे वो बहुत rarely मैं Insta पे जा रहा था थोड़ा बहुत to freshen up my mind, but other than that I was completely out. So I apologize for all those people जिनके मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया. मैं I've started to respond to all of you one by one, so I will definitely do that. But that kind of was the reason I have not responded to anyone. All right, so coming back, आते ही obviously पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके बारे में हम slowly बात करते रहेंगे. We'll do more sessions now regularly, and we'll talk. But one thing which has really been bothering me for the last 2 days, कल से मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन ट्विटर, हाउ पीपल आर दे आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. कहते हैं ना शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस शायद सबके साथ होता है. एंड अगेन आई अपोलोजाइज टू ओनली दोज पीपल who might think, who might feel that I'm sounding a little kind of rude or aggressive. But वो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि I think a lot of you would feel the same way. Reason being, सबसे पहला और सबसे basic question, who is समीर वानखड़े? समीर वानखड़े से रिलेटेड इतना इशू क्यों चल रहा है सोशल मीडिया पे? Have we forgotten, have we all forgotten all the nonsense that समीर वानखड़े and his family had to go through? जो भी उनके साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ हुआ, उनके फादर किस तरह से वो, मतलब those visuals I can never forget. Those visuals have, वो कहते हैं ना परमानेंट एक इमेज बन चुकी है मेरी लाइफ में, मेरी मेमोरी में, and I don't think anything can take it away. The way his father was holding that file folder and doing interviews with different channels, stating कि भाई हम ये हैं, हम we are, this is our identity, अपनी identity prove करना, अपनी caste prove करना. Have we also forgotten how the entire family of Sameer Wankhede, including his wife, his sister, यहाँ तक कि अगर इनका बस चलता और छोड़ा तो नहीं था इन्होंने, छोटे बच्चों तक को इन्वॉल्व करने की हो रही थी, and they were harassed to all the limits. Still उसके बावजूद this family has stood like a rock solid. There are some issues, no doubt about it. मैं कहता हूँ there are some doubts. Issues तो मैं नहीं use करूँगा word.
there are some doubts, there are some clarifications around Sushant Singh Rajput's documentation और उसके बारे में, which is very very clear that whenever we get a chance, whenever Samir gets an opportunity or he is able to speak, we should ask him, no doubt about it. But हमारे moral values, हमारी हमारी वो जो हमारी बातें हमारी होती हैं, वी आर सुशांत्स वॉरियर्स, वी आर स्टैंडिंग फॉर ट्रुथ, वी आर स्टैंडिंग फॉर what is right and we will fight against everything that is wrong. तो कहाँ गए वो moral values, कहाँ गए वो ethics, कहाँ गए वो sense of responsibility around this person, Samir Wankhede, who is again under attack just because he stood against the Bollywood cabal. And he did not do it as a favor. I don't think Samir did a favor to me or to you or to anybody. Is he even responsible or accountable to you or me or anybody? कई बार हमने उनसे सुना है, सेशंस पे भी सुना है, आउटसाइड ऑफ सेशन भी सुना है, न्यूज़पेपर्स, interviews, TV interviews, everywhere we've heard. For him, his country comes first. I'm not a fanboy. Let me just clear it out very clearly right now, okay? I'm not a fanboy. I don't treat people like gods. Samir is not a god to me. But as a fellow human being, as a fellow Indian, isn't it very shameful on our part कि जब उसको अटैक हो रहा है, जब उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, we are behind his back, abusing him just because of something that happened in Sushant Singh Rajput case. He's justified or not, we will get to know. Time will tell. But at this time, जब ये Bollywood का पूरा cabal is attacking him, his people, Bollywood क्यों? We all know, the King Khan, the Bollywood ka Badshah, how he and what all he did to get his son out. अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं पूछना सबसे ये चाहूंगा, क्या समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को मैसेज किया था कि आर्यन उस कॉर्डिलिया शिप पे जाओ बेटा और वहां पर मैं तुम्हारे को आऊंगा, हम तुम्हें पकड़ेंगे and it'll make a big news, so let's have some fun together, so why don't you go there at this time? क्या ऐसा हुआ होगा क्या? I mean, या समीर इतना वेला या एनसीबी के उसके ऑफिशियल्स इतने वेले थे कि they were putting a spy cam on आर्यन खान specifically कि हमने सिर्फ आर्यन खान को देखो, फॉलो करो और जहां मौका मिले इसको पकड़ेंगे. I mean, what kind of a joke is that? They went there to catch drugs. अब ड्रग्स के साथ कौन पकड़ा गया? आर्यन खान की जगह संजय दत्त हो सकता था, संजय दत्त की जगह डीनो मौर्या हो सकता था, इट कुड बी एनीबडी. नाउ जस्ट बिकॉज इट वाज आर्यन खान, और हमने देखा राइट आफ्टर ऑल द मेस दैट गॉट क्लैरिफाइड एंड क्लीन्ड एंड व्हाटएवर नॉनसेंस हैपेंड, उसके बाद भी आर्यन खान इन अ पब ड्रिंकिंग दैट 21-22 year old किड और बेबी, हमने उसको फिर देखा ड्रिंक्स करते हुए. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग. All I'm saying is, how can you justify that जो आर्यन खान के साथ वहां हुआ बोट पे, जो भी उस शिप पे, that was all planned? Do you have any proof? Do I have any proof? Do we have any evidence? सारा डॉक्यूमेंटेशन एनसीबी, या अगर मैं कहूं क्योंकि सब समीर वानखेड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो अगर समीर ने सारी डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट्स को दी, द जज, was he also समीर's friend कि चल समीर केस लेके आया है तो चलो आर्यन खान को जेल में कुछ दिन रख लेते हैं? What kind of a logic is that? जज को भी कुछ दिखा होगा in the documentation, in the proofs that he ordered him कि आर्यन खान should be put or taken into custody. There has to be some logic. Where is our logic? वैसे तो हम बहुत आजकल सोशल मीडिया पे, और मैं सिर्फ एसएसआर वॉरियर्स की क्यों बात करूं, मैं उनकी भी बात करूंगा जो सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ही बड़े तीसमार खान समझते हैं. सोशल मीडिया is a very 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 shitty place. I have realized it in the last 2 weeks. The moment I disconnected, तो कहते हैं ना एक मेंटल पीस, एक अलग ही तरह की सेटिस्फैक्शन, एक अलग तरह की लाइफ शुरू हो जाती है. The moment your social media antenna is on,
you become a monster. और यहाँ पर तो हमने खुद, like personally अगर मैं देखूं, there are people who can go or stoop to any levels, गाली गलौज, abusing the families, abusing each other publicly, लिख के spaces करके गालियां देना, और ऐसी गालियां देना जो सुनी भी ना जा सकें, और उसके बाद टारगेटिंग टारगेटिंग समीर इज अ प्राइम एग्जांपल। किस तरह से समीर को टारगेट किया गया था, नवाब मलिक की पूरी फैमिली, नवाब मलिक के पूरे एक सोशल मीडिया जो टीम, स्टिल Samir Wankhede and his family, with all the respect and modesty that they've learned, they've kind of built their whole career and lives on, uske basis pe they still maintained that dignity and they came out victorious. All the investigations, everything came out to be giving them a clean. Uh, can anyone believe that Aryan went for Putin? क्या बात है, एब्सोल्युटली कामिनी जी, सही बात है। कई बार मैं यहां पर फिर भी कहूंगा टू योर कमेंट, कई बार किस्मत खराब होती है ना, तो मेरे नाना जी कहते थे जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। और मैं कहता हूं चलो किस्मत खराब थी उसकी, वो वहां गया, बट सारे बेनिफिट ऑफ डाउट सब कुछ देने के बाद भी, सारे बेनिफिट ऑफ डाउट्स देने के बाद भी, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, आर्यन खान वॉज ब्रॉट टू अ कोर्ट जहां पर जज था, जहां पर बहुत लोग थे जिनके सामने वो एविडेंसेस रखे गए थे। इवन शाहरुख खान की खुद की आर्मी ऑफ लॉयर्स, और शुड आई से लायर्स, वो भी थे, उन्होंने भी देखा होगा सारे एविडेंसेस जो कोर्ट पे रखे गए, जिनके बेसिस पे आर्यन खान को कस्टडी में लिया गया। तो अगर वो एविडेंसेस वर ऑल रॉन्ग, फॉल्स, एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड, तो क्या सारे लोग ही नहीं उस टाइम पे उसको वैलिडेट कर पाए, एंड उसकी बाद भी उसको आर्यन खान को कस्टडी में लिया गया? तो बिल्कुल बिल्कुल, हेलो 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 आयुष, हेलो, एंड एब्सोल्युटली, सो द लॉजिक, जो हमारे कॉमन सेंस लॉजिक, जो मैं हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे भी ट्राई करता हूँ, प्लस अपने सेशंस के थ्रू भी, आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, प्लीज 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 थोड़ा लॉजिक, कॉमन सेंस लॉजिक अप्लाई करें। समीर, और सबसे बड़ी बात, समीर वानखेड़े इज नॉट जस्ट एनसीबी, ही डज नॉट मीन एनसीबी। एनसीबी एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, देर आर डिफरेंट लेवल्स। समीर वॉज नॉट एंड इज स्टिल नॉट, अभी तो वो वैसे भी एनसीबी में नहीं है, बट जब थे, ही वॉज नॉट द नंबर वन, जिसे कहते हैं ना द होम मिनिस्टर की तरह, ही वॉज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। He had people above him as well. He had people below him as well, who were doing a lot of other things as well. तो यहाँ पर जो भी समीर के साथ हो रहा है अभी, more than the cabal, more than the Bollywood people, and उसके बारे में भी हम बात करते हैं, but the more saddening part to me at least, गांधी जयंती, एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट सुनील जी, आपने बताया 2 अक्टूबर को पकड़े गए थे, सिंपल सी बात ये है, एक्चुअली साल भी हो गया, पता ही नहीं चला। एनीवेज, तो 2 अक्टूबर को जब पकड़े गए थे गांधी जयंती मनाते हुए, आप ये सोचें कि व्हेन इट्स अ ड्राई डे इन द एंटायर कंट्री, तो वो शिप पे क्या करने गए थे, यू नो ऐसा क्या सेलिब्रेशन था स्पेशल कि वो लोग पार्टी करने गए थे वहां। बट एनीवे, सो दैट इज वन। तो सोशल मीडिया के जो धुरंधरी, जो अपने आप को बहुत बड़े वॉरियर्स समझते हैं, अगेन जस्ट नॉट सुशांत वॉरियर्स, द अदर वॉरियर्स ऑल्सो। अब बात करते हैं थोड़ा सा उन सुशांत सिंह राजपूत वॉरियर्स जो एसएसआर वॉरियर का टैग लगाते हैं अपने साथ, जो ये कहते हैं कि हम सुशांत के लिए यहाँ पर हैं, हम वी डोंट इवन केयर अबाउट एनीबडी एल्स। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं, और कुछ तो मैं विदाउट disrespecting anyone, there are some even female warriors who say
why even sisters को भी हमने क्या लेना है? हम तो अपने लिए आए थे, हम तो सुशांत के लिए आए थे। फैमिली से क्या करना, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना, फैमिली का दे डूइंग अ लॉट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल ड्रामा ऑन सोशल मीडिया। डिफरेंट स्पेसेस में जाएंगे, हर जगह बकवास, हर जगह वही उल्टी करेंगे एंड स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, और ब्लेम फिर दूसरों को करेंगे कि दूसरे लोग बेसिकली आर डिस्टरप्टिंग दिस मूवमेंट, दे आर ब्रेकिंग द मूवमेंट, हमें क्या लेना, वी नीड टू मूव ऑन। और हर जगह वही चीज उगल के बार बार गंद मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एंड अदरवाइज भी। एंड playing the victim card, they love to play the victim card, age card, फीमेल कार्ड, मेल कार्ड, डिफरेंट कार्ड्स खेलने आते हैं इनको, और ये चलता रहेगा। तो उनसे भी क्वेश्चन सिर्फ यही है कि डू यू इवन रियलाइज, लेट्स कीप सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट aside for a second, but did you, at least for me, I did not know NCB क्या है, क्या करती है। For me, it came into limelight only after I started reading about Sameer Wankhede. The number of cases he's handled, the number of people he's arrested in the NCB while he was in NCB is really mind blowing. उससे पहले when he was with IRS, कितने लोगों की टैक्सेशन की, को लोगों को पकड़ा एयरपोर्ट पे, मिक्का सिंह जैसे चोरों को पकड़ा, और बहुत सारे लोग गोल्ड स्मगल करते हुए, मनी स्मगल करते हुए उनको पकड़ा। उसके बाद बॉलीवुड के काफी लोगों के अकाउंट्स को सीज किया फॉर टैक्स इवेजन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो is this not someone who has been doing a lot of things for our country? uh, Clean up India, drug free India. That was something which Sameer has always spoken everywhere. He does all these different वो sessions करते हैं, हमारे sessions पे भी, YouTube पे भी आए हैं, offline भी he goes and visits communities, he motivates people. He has done so much outside of the Sushant Singh Rajput case as well. So as the citizens of this country, or as human beings, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि if such a person is being targeted, that we stand by him and we support him in this? सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है कि व्हाट हैज ही डन इन सुशांत सिंह राजपूत केस, लेट्स क्वेश्चन हिम, let's question him around that. Who is asking you not to do that? Everybody has a right to ask questions, or Sameer से question पूछे आप, but there has to be a certain way. And if somebody doesn't want to answer you for whatever reason, it could be his role, his capacity, it could be anything. If he doesn't want to answer it, just keep quiet. If somebody doesn't want to answer you, उसका मतलब ये है that that person doesn't want to answer you. So doesn't mean कि आप उसको abuse करेंगे आप, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी फैमिली को अब्यूज करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके काम के ऊपर क्वेश्चन और ज्यादा उठाएंगे। यस, यू आस्क द क्वेश्चन, द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मेंटेन डिग्निटी, डोंट बी एन अब्यूजर, डोंट बी अ ट्रोलर। तो समीर वानखेड़े को इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जिस तरह से फिर से ट्रोल किया जा रहा है, इट्स नॉट हेल्पिंग। सेकेंडली, please try to understand, शाहरुख खान is not a simple guy कि चल यार मेरे बेटे को अरेस्ट किया था with drugs तो खत्म कहानी। He knows how to play around with people because he has the power, the money, the influence. शाहरुख खान की पार्टनरशिप के फ्रेंड्स, बिजनेसेस बहुत हैं, both in government and outside of government, अंडरवर्ल्ड, हर जगह। दुबई के अंदर एड्स करता है, दुबई में घर है, दुबई में क्या करते हैं, we all have seen everything. His business partners who are ISI agents, Pakistanis and whatnot, we all know what his affiliations are, उसके बावजूद we all know how Rajiv Shukla, the best buddy, I would say one of the best buddies of Shah Rukh Khan, how he is also an integral part in the government and helping his friend, his buddy, his business partner, शाहरुख खान in Delhi. जब शाहरुख गया था अपने बेटे को छुड़वाने के लिए दिल्ली में, किस तरह से छुपते छुपाते गया था, किसको मिला था, किसके साथ मिला था, किसने अरेंजमेंट सेटल कराई थी? Rajiv Shukla played a very key and integral role in that. Who is Rajiv Shukla and how is he now responsible for what is happening? Rajiv Shukla ka PA, again, very surprisingly, but a PA
जिनका नाम इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, ज्ञानेश्वर सिंह, who happens to be another IPS officer. Uh, he was the PA for this guy, Rajiv Shukla. कितने साल उसके साथ काम किया, आईपीएल में भी कई बार दिखा राजीव शुक्ला के साथ. एंड नाउ दिस गाय वाज मैनेजिंग दिस सेट एसआईटी जो सेटअप हुई थी टू फाइंड एनी disorderly conduct in the way the case was handled. And no surprises, अपनी affiliation दिखाने के लिए exactly सुनील जी, कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स कहो या whatever इनको कहो, तो किस तरह से this guy who was leading the SIT has now come out and said कि कुछ 7-8 लोगों ने कुछ गड़बड़ की है इस केस में. It was not handled the way it should have been handled. Now the question arises, Sameer Wankhede, who has handled thousands and thousands of cases, awarded the Home Minister Award, national कितने awards उनको मिले हैं, कितनी appreciations मिली हैं, promotions मिली हैं, title tags मिले हैं, and he is considered as one of the the most honest officer in both IRS as well as NCB, whatever capacity he's been or whatever role he's been assigned, चाहे वो elections के time पे उनको कोई role दिया जाता है या किसी public speaking के लिए या लोगों को motivate करने के लिए बोला जाता है, whatever is said and done, he has been there with full honesty, with full integrity. Apni family life, he was also abused. His dead mother was also abused. Father had to be out and about to prove things. इतना कुछ होने के बाद भी Sameer Wankhede is standing strong, and he's also filed a complaint against Gyanendra Prasad, and I'm sure it's Gyaneshwar Singh के अगेंस्ट बहुत कुछ होगा. और सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह के साथ नहीं, ज्ञानेश्वर सिंह के साथ साथ बहुत सारे और लोग हैं जो इस टाइम पे देयर गोइंग विद द फ्लो. पहले भी हुआ था, और आज हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से चिचा जान बैठे हैं जेल के अंदर, और there doesn't look like there will be any kind of respite for him, or he will be out anytime soon. और वैसे ही अब ये ज्ञानेश्वर सिंह, चाहे वो IPS ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी हो, he will also be kind of, he'll have to submit all the proofs, evidences, which I'm sure he will, not have, या fake बनाएंगे. But at the same time, justice will be served, no doubt about it. So Sameer Wankhede, with his all honesty and integrity, will come out victorious one more time. But मेरी सिंपल एक रिक्वेस्ट, मेरी एक सिंपल सी गुजारिश है सबसे, थोड़ा सा be a little bit more human, and especially to those people who have put in Sushant's की photograph on their DPs, who says उनके handles भी कुछ तो Twitter पे सुशांत से related हैं, SSR का नाम यूज कर रहे हैं. मेरी सिंपल रिक्वेस्ट, या तो आप ना यूज करें सुशांत की डीपी, ना आप यूज करें सुशांत की फोटोग्राफ, ना हैंडल में नाम लिखें, या अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट कीप क्वाइट. डोंट हैव टू शो योर ट्रू क्या कहें, कलर्स कहें या अपनी औकात कहें या जो भी कहें, एंड स्टार्ट अब्यूजिंग समीर एंड समीर्स फैमिली, और से थिंग्स अराउंड हिम. यू डोंट लाइक समीर, you don't appreciate him, you feel he did something wrong in Sushant Singh Rajput case, you have all the rights to do whatever you want, but you don't have a right to abuse Sameer Wankhede. And as a matter of fact, anybody. सिर्फ समीर की क्यों बात करें, सेम चीज सब पे एप्लीकेबल होती है. You cannot abuse everyone. You really cannot. थोड़ा सा अपना लैंग्वेज, थोड़ा सा अपना जो आप चीज़ें लिखते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर कंट्रोल करें. एंड ऑफ द डे,
सत्यमेव जयते, जैसे समीर हमेशा बोलते हैं, ट्रुथ विल कम आउट एंड वी विल गेट टू नो, बट टिल द टाइम द ट्रुथ इज नॉट आउट, जब तक हम पूरे फैक्ट्स के साथ बाहर सब चीजें नहीं देते, at least let's believe on what we have seen, and truth will come out. Santosh, truth will come out. The only downside now, Naxal will make mockery and bullying more. Samir Wankar, exactly, and that's another thing that is happening. Kamini ji, that is the biggest problem. That इतना मजाक हो रहा है, इतना ज़्यादा abusive सब हो रहे हैं on social media. They are making it a mockery. Again, I'm gonna repeat that. You don't like Samir, it's absolutely fine. You don't have to like everybody. You don't have to like me. You don't have to like Kaminiji. You don't have to like Rubal. You don't have to like Sunil. Anybody. You don't like it? Keep your mouth shut. Move on. You don't have to start abusing people. और फिर ऐसे लोगों को अगर हम अब्यूजर बोले और इन लोगों को हम बोले कि you are the biggest disgusting person on social media, then they feel offended, they feel hurt. Obviously you are an abuser. If you're abusing somebody, you will be called out, you will be an abuser. Nobody can take that tag from you. You can do whatever. आप गंगा में डुबकी लगा लो, आप गाय को घास खिला लो, आप कुछ भी कर लो, मंदिर में जाके झाड़ू पोछे भी मार लो, और बाहर आके सोशल मीडिया पे अगर आप अब्यूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, you will still be an abuser. पाप कोई धुल नहीं जाएंगे आपके. So a message to everybody and anybody who feels that Samir has done wrong, please go ahead, call him. समीर ने तो अपना नंबर तक पब्लिक किया हुआ है. समीर ने अपनी डिटेल्स इतनी ज्यादा पब्लिक, इवन समीर्स वाइफ, शी इज सो रिसेप्टिव एंड शी इज सो ओपन. आप उनको जाके क्वेश्चन कर लो and let them answer you. But social media pe stop making this mockery of Samir Wankhede, an officer who has contributed a lot to the cleanup of our society, somebody who has done so much for our younger generation. Let me tell you one example. मैंने ये शायद समीर के साथ शायद शेयर किया भी था. There was this one individual जो एक सेशन पे आया था और उन्होंने बताया था कि my son who is in Delhi is really very, very badly engrossed in drugs. He was crying. He was literally crying and he was like कि आप चाहे उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो प्लीज, पर उसको कम से कम जेल में डालोगे तो कम से कम वो ड्रग्स से तो पीछे हटेगा, वो ड्रग्स लेना तो बंद करेगा. That was what that parent, that dad was begging and he was requesting कि काश मुझे समीर से कोई मिलवा दे और समीर मेरे बेटे को अरेस्ट करके जेल में बिठा दे ताकि वो ड्रग्स लेना बंद करे. This is the value that Samir has contributed to this society. Drug is a big issue and he has handled these people. Money laundering is a bigger issue. People have really looked up to him. And a girl who says Tai was not innocent and SSR can't do it also finds her in her home. Sad to hear. Yes, we'll talk about her as well. Very sad news and very sad story. Exactly, that is true. I have not have the right to abuse anybody. Yep, Samir is not the only one answerable. Why CBI is silent? Absolutely, Olga. Exactly, that's a very good point that you brought, Olga. I would say, ये जितने social media warriors हैं, why don't you go ahead and tag CBI? अब तो CBI का भी handle है. Go ask them questions. Be abusive with them. जाओ उनसे तो पूछो पहले. आप ये कहते हैं ना कि आप तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आए थे. So now instead of wasting your time on such things, go talk about Sushant to CBI. CBI के ऑफिस के बाहर जाके आप खड़े हो, वहां जाके फाइट करो, पूछो CBI when are you gonna give an update. ये वो वॉरियर्स हैं जो मैं देख रहा था, किसी ने ट्विटर पे भी लिखा था that प्रियंका दी should now reach out to CBI and should take some action. ये अपने आप को ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल समझते हैं, बुद्धिमान, जिनको मैं मंद बुद्धि बुलाता हूँ. ये मंद बुद्धि लोग जो हैं अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं. दे थिंक दे नो द सिस्टम प्रीटी वेल. दे नो एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट एवरीथिंग एंड व्हाटएवर दे से is the truth and everybody else is an idiot sitting out and doing nothing.
फिर बार बार याद दिलाना पड़ता है, और ऑब्वियसली आप तो 2 हफ्ते हो गए, तो 2 हफ्ते से तो मैंने याद नहीं दिलाया, तो आज मैं फिर याद दिला देता हूँ कि प्रियंका सिंह इज सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर। ये वो प्रियंका सिंह है जिन्होंने अपने भाई को खोया है। ये वो प्रियंका सिंह है जिन्होंने अपने कई सेशंस में, जो हमारे साथ 1-2 सेशंस हुए उसके अंदर भी बताया था कि हाउ हाउ दे प्रेड टू गेट अ ब्रदर लाइक सुशांत, how they were able to live a very normal decent life, and वो love, वो affection as a family of sisters, taking care of their little brother, किस तरह से वो पूरी की पूरी एक फैमिली डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है आफ्टर सुशांत was killed, he was murdered. So don't teach stuff to Priyanka Di. She knows what she needs to do. She knows how to handle the case because she is actually qualified, irrespective of all the nonsense that everybody, not everybody, a lot of people do on social media, जो Twitter पे बकवास लिखते हैं. Still, she filters out all of that, and she's still focused on getting justice for her brother, her father, herself, and everybody who is genuinely here for Sushant. तो थोड़ा सा ना दिमाग अपना किसी क्रिएटिव काम में लगा लो. If you are so bogged down, if you don't have a job, बहुत सारे वॉरियर्स ऐसे हैं. I've said it umpteen times. Even I can help. I can try to help. We will find you a job. We will get you busy in life. We will get you something that कि आपका दिमाग सही जगह चले. बस करो इस मूवमेंट को खत्म करना, खराब करना, नेगेटिविटी फैलाना, लोगों के बीच में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, लोगों को अब्यूज करना. बहुत सिंपल एक रूल होता है. यू डोंट लाइक समवन, मूव ऑन. आजकल तो मैं अगेन नॉट टू टॉक अबाउट दिस लाइक सो ओपनली, बट स्टिल आजकल कहते हैं इंडिया में भी डिवोर्स रेट्स हैव इंक्रीज्ड. रीजन बीइंग, when it becomes so difficult to stay with somebody, when it becomes very difficult to live with someone, you cannot give that torture to yourself or to the other person. तो बॉस, अगर आपको लगता है कि दूसरा बंदा इज रॉन्ग, नेगेटिव, डूइंग समथिंग बैड, समथिंग दैट यू डोंट अप्रिशिएट, you ask them a question once, you ask them a question twice, third time you move on. You know that person is not made for you, that person is not important for you in your life. तो आप छोड़ दो यार, आगे बढ़ो. समीर ने भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आपको लगता है समीर ने गलत किया है, एक बार आप पूछो, जवाब नहीं आया, दूसरी बार जवाब एक्सपेक्ट करो, नहीं आया, shut your mouth and move on. You don't have to continuously, गंदगी फैलाना जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको गंदगी ही फैलानी है. उससे सिर्फ ये पता चलता है कि इन योर पर्सनल लाइफ you are either jobless, or you are worthless anyways in your life, or you get that sadistic pleasure. हाँ, sadistic pleasure है अगर आपको इसमें मिलता है, then you need medical help, then you need some kind of medical support. And again, हमारे बहुत ऐसे warriors हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं social media पे who can even offer you that. There are rehab centers, there are medical centers, there are doctors, there are physicians, they can help. So please, थोड़ा सा take some rest, take some break, reach out to people who can help, and get that medical assistance as well. And itna social media pe already there is so much happening, not just around Sushant, but other than that. Politics से लेके, health से लेके, COVID से लेके, economics से लेके, I mean, there are thousands and thousands of issues. यार कोई और इशू पकड़ लो यार, अगर आपको लगता है किसी और के बारे में कुछ अच्छा बात करो, कोई स्पिरिचुअल सेशंस ज्वाइन करो. बहुत सारे बाबा लोग ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान बांटते हैं. There are people who share a lot of these motivational speeches and all that stuff. Listen to them. Do something good about your life, do something good about yourself, rather than spending or wasting actually time सबका. और
सिर्फ इतना एक बार मैं फिर वही कहूंगा, आई वांटेड टू कीप दिस सेशन शॉर्ट, बट आई नो few people definitely would love to talk about Samir, so I'm gonna give this link to all of you, but please try to understand. uh, hello Pradeep ji, hello. Why there is so negativity here? Exactly Sarita ji, ये negativity को ही खत्म करें, move on with your life, move on with others life. और मैं समीर का इसलिए भी एग्जांपल बोलूंगा बिकॉज राइट नाउ इमेजिन it's almost the festival season. It's so much positivity, warmth, love. हम लोग सोशल मीडिया पे आए, कनेक्ट हुए. We made a family here with few people. Now instead of spending or spreading some cheer, some joy, some happiness, or finding some kind of mental peace, all we are doing right now is just BSing around. एक दो लोगों के साथ करो, लड़ो, जो करना है करो. टेल एवरीबडी, एक बार वो ढोल नगाड़े बजा लो आप लोग. यू वांट टू डू दैट, प्लीज गो अहेड. यू डोंट लाइक समीर वानखेड़े, एक बार आप अपना ट्वीट करें, अपना सेशन करें, स्पेस करें, जो करना है, and show your disrespect, not disrespect, your anger against Samir. I don't appreciate him and I will not support him. Now move on. If you need to vent out, come speak, vent it out, move on. uh, Notice that there are no mediators here. I don't know. I have no clue, which is good in a way. So I hope there's फिर से मेरे चैनल का issue ना हो where all the moderators are gone and all that stuff that happens. Anyways, so which is okay. So pretty much all I wanted to say was show some humanity, show some love, show some compassion, show some empathy. ये सिर्फ words नहीं है. As a human being, try to do at least some goodness or bring some kind of positivity through your different, चाहे आप spaces कर रहे हैं, चाहे आप sessions कर रहे हैं, चाहे आप Twitter पे tweet कर रहे हैं. Try to connect with people on a human level. Try to be positive. Try to find some happiness in a lot of all the noise around you, and try to motivate people. Try to bring people together. Try to do some goodness by spreading, किसी के मुंह पे स्पाइल लाएं. लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, spreading negativity, abusing people, making very very ugly remarks around people, body shaming them. You don't know what's going on in their life. You really don't know. If somebody is abusing you, you tell them once, and second time you also move on. It's applicable both ways. अगर आपको कोई अब्यूज करता जा रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, don't bother. Just try to ignore. Ignorance is bliss. I'll tell you, जितना ignore करोगे, actually the other person or the other party will feel कि यार ये bother क्यों नहीं हो रहा, ये कोई reaction क्यों नहीं दे रहा, ये response क्यों नहीं दे रहा. So let them burn in their own negativity. Let them burn in their own, like I use the word shit, because all they are doing is shitting all over the place, even on their own faces. They're shitting everywhere. मैं बहुत सारे लोगों के बारे में सुनता, अभी भी सुन रहा हूँ actually, चाहे वो spaces हो, चाहे sessions हो, they're shitting all over the place, spreading negativity, लोगों के बारे में कितना गलत बोलना. समीर के लिए तो मैं देख रहा हूँ किस तरह से लोग and then there are few kind of people who are still confused, who are not even like, they don't have a clue कि किस तरफ जाएं, should we support Samir or not, but they have a fear कि अगर हमने समीर को support दिखाया, समीर को दिखाया कि we are with him, then they'll be their fellow warriors who will abuse them, जो उनको abuse करेंगे, जो उनको target करेंगे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा they will all be like left. It started with me fight, no mediator, no fight, like all good day. That's the way to go. पता नहीं सरिता जी आप किस mediator, हमारे बहुत सारे moderators की बात हुई थी. Hello अभिषेक, welcome. हेलो वरुण सर, हेलो, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, जय माता दी. कैसे हैं बताओ? बढ़िया. और क्या कहना चाहोगे समीर?
टॉपिक पे। बिल्कुल जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने आरोप लगाए हैं गणेश्वर सिंह के ऊपर कि उन्होंने गवाहों को पीटा है, मारा है। तो कहीं न कहीं एक सच्चे हॉनेस्ट ऑफिसर को टारगेट किया इन लोगों ने और उसके बाद देखा हमने जैसे समीर सर को मतलब कि आर्यन खान के केस से निकाला, तो तब इन लोगों ने अपने एनसीबी इंडिया में एक इनका ट्विटर का वो है एक इनका नाम है जो एनसीबी इंडिया। इन्होंने बॉलीवुड के जो शिल्पा शेट्टी हो गई, एक जो सभी सुनील शेट्टी हो गए, सभी उन लोगों ने प्रमोशन किया से नो टू ड्रग्स। तो हमें तभी पता लग गया था कि ये लोग बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं और ये एनसीबी वालों ने बहुत गलत किया। और इनको कहीं ना कहीं इनको सजा तो मिलनी चाहिए। और जैसे कि सर ने अब रुख किया है ऐसे शेड्यूल कास्ट ऑफ नेशन का, तो वो इस पे कार्रवाई करेंगे और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है एनसीबी वालों को कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को सबमिट करें। और ये सब चीज़ें और हम नहीं चाहते कि हॉनेस्ट ऑफिसर को किसी भी तरीके से तंग किया जाए। और मैं आपने सही बोला कि कुछ लोग हैं जो टारगेट करते हैं समीर सर को, और समीर सर उनका भी इलाज करेंगे जो समीर सर को भी टारगेट करते हैं। उन्होंने बता दिया ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन किया है ना, जो उनको मिलान किया है उन्होंने गणेश्वर सिंह के ऊपर सर ने जिस तरह से किया है। तो ये देख सकते हो लेटर जो सर ने बताई है। या तो सो बेसिकली ये जो अभिषेक अभी बात कर रहा है, ये बेसिकली एक कंप्लेंट है जो भेजी गई है ऑन 18th, जो कि मेरे हिसाब से कल, बट यस इंडिया के हिसाब से परसों भेजी गई थी, जिसके अंदर ये मेल गई है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ये गई है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, ये गई है डीजी नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो को, ये गई है डायरेक्टर जनरल विजिलेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, एंड द मेंबर एडमिन एंड विजिलेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को। इन पांचों एजेंसीज को, इनके लीडर्स को, इनके ऑफिसर्स को ये गई है रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम श्री समीर Dhyandev Wankhede, IRS, regarding harassment and atrocities committed against SC by Shri Gyaneshwar Singh, IPS DDG, NRCVO, and his vendetta, जिसके अंदर very clearly it's kind of listed, और ये email is all on social media, और 15 दिन का रिसीप्ट नोटिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कमीशन हैज़ फर्दर डिजायर्ड सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो जिस बेसिस के ऊपर समीर के ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं, उसके बारे में भी रिक्वेस्ट की गई है कि वी वुड लव टू सी द एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स which are the evidences, and that's what it is all about. We need the truth to be out. सच को बाहर आना ही होगा, और जब सच बाहर आ जाएगा तो उसके बाद सब जितने ये जो सोशल मीडिया पे जो हीरो बन रहे हैं और जो अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इन सबको भी एक लेसन मिल जाएगा कि यू नो प्लीज डू दैट, कि तब तक थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखें, एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एन ऑफिसर। मैं अभी भी ये कहूँगा, यू नो, even though we know a lot about Gyaneshwar Singh right now, still he is also an IPS officer, he is a cadet officer. We will still be respectful towards him and let the facts जो सच है that speak for itself. तब तक ना आप समीर को अब्यूज करें, ना आप गणेश्वर सिंह को अब्यूज करें। आस्क द क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा समीर को क्वेश्चन पूछना है पूछे, सेम थिंग गो एंड आस्क गणेश्वर सिंह ऑल द क्वेश्चंस। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। लेट्स नॉट मेक अ लॉट ऑफ फस अबाउट इट, एंड लेट्स मेक श्योर दैट बाकी लोग जो अब्यूज कर रहे हैं उनको भी हम प्यार से समझाएं कि मत करो। मैं ये भी देख रहा था कि जो लोग समीर के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनको जो जो समीर के लिए बात करना चाहते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी टारगेट किया गया है पहले भी और आज भी हो रहे हैं वो, और हमारे बीच में से ही लोग उठ के उनको टारगेट करते हैं।
गाइस अगेन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, अगर आपको नहीं पसंद, मूव ऑन, डोंट अब्यूज। एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अब्यूज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली यू आर फीडिंग फूड टू ऑल दोस अदर ट्रोलर्स। जो रिया गैंग और जो बाकी गैंग वाले, वो ये देखेंगे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लेट्स ऐड मोर फ्यूल टू द फायर। सो प्लीज कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी कहते हैं ना सपोर्टिव ऑफ समीर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। नमस्ते गिरिजा जी, वेलकम। Namaste. I was actually very sad when Samir was taken out of this case, on the one hand. And at the same time, I felt relieved because he was being tortured every day, for on very every matter that was not connected with the case. What kind of shoes he was wearing, what kind of belt he was wearing, all those things. And every day there was a press conference, and his attention and energy was diverted from this case. He was not able to focus on it. How earlier the whole thing could have been solved, they did not allow him to do that. Now, all that notwithstanding, we are also aware that there were reports earlier itself. Now only Samir ji has come out and spoken about Gyaneshwar Singh, and he says that there was torture of the witnesses. But earlier itself, it had come in the print media that even before Prabhagar Sale passed away, that he was Yep. called again and again, 10 hours and 11 hours. He was called, and we know how he and the other person who was with him, I forget his name, both were separated. First they were both together, and then they were separated, and then this man is singled out and he passes away. Everything is under investigation. Yeah. So instead of coming out in the public domain, if there was something like that, then they must have solved it inside the organization, within the organization. So this shows very clearly that there is some vendetta going on, because inside interdepartmental things need not come out. What is intra-departmental need not come out at all, right? Just as Samirji, whatever it was, he never brought it out into the open that these people were tortured, the victims were tortured. He didn't talk about it until now. So whatever was intra-departmental, they could have handled it. The very fact that it was brought out into the open shows that there is something more than meets the eye. Yep, absolutely. And both आपने जैसे प्रभाकर सेल की बात की, I think the other one was KP Gosai. Right. Both of them were taken into custody, and whatever, no suspicious death या heart attack या whatever you want to call it, right, जो हुआ प्रभाकर सेल के साथ, we don't know, and facts will come out eventually, they will. But till that time, it is not right to kind of target Samir. And इस time पे, if I just go to social media, I can very clearly see that divide. Of course, I have to filter all the messages, I have to ignore some of those things, but one thing which really bothers is people have completely forgotten कि समीर वानखेड़े ने country के लिए भी कुछ किया है. Yes, he was a name we got to know because of Sushant Singh Rajput case, no doubt about it. But then there is a larger kind of, so many years of service. Exactly. He is an award winner, right, from the government. Exactly. So and or usse pehle bhi, as part of the IRS as well, he captured so much money, saved so many tax rupees for our country. बड़े he didn't even care about कौन Mika Singh or कौन whatever the names were. There were thousands and thousands of people who he took into custody, arrested. He also, not only as IRS, even NCB, he was also awarded the Home Minister's special award. हर किसी को नहीं दे देते. It's not like that somebody is just sitting and doing nothing and he gets an award. But he did his job with most honesty, integrity, and we've talked to him. कई बार ऐसा होता है that when you meet someone, you talk to them, and that's when you start feeling whether this person is right or wrong. With Samir, again, that's a personal view of looking at it, and I generally look at that way. Okay,
जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑल्सो आई गेट टू अंडरस्टैंड वेदर दिस पर्सन इज राइट और रॉन्ग, या मैं उसके साथ रखूंगा कि नहीं. So Sameer to me has always been that person. Yes, there are certain things around Sushant Singh Rajput case where we can ask questions, no doubt, but that doesn't mean that Sameer is wrong or he has done anything anti-country or anti whatever cabal. But लोगों को थोड़ा समझना चाहिए. And I completely agree, Juhi ji. He was only trying to rid our society of the menace called drugs, and that's why he's paying the penalty, and that's why he's being punished. Hello, Shweta. Hello, Pradeep ji. Namaskar and welcome. Shweta, bole pehle aap, and then I'll go to Pradeep ji. Hi, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Varun. And it's so good to see you after so many days. And yes, so the topic today Something is which all is very about, close to you, yes, because something which you have is, been roaring for Sameer and around this, not because yes, you are, Sameer's, relative or something, just because you feel what Sameer has done for all of us, for the country, is the reason why you want to stand. So please go ahead. absolutely. So the developments which have happened since yesterday. So I think all of us might now know things happening behind the scenes. Things happening. अभी तक बहुत fishy था कि क्यों आर्यन को छोड़ा, क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा. नाउ आई थिंक इट्स बिट मोर क्लियर. लोगों की आंखों पे जो पट्टी थी पिछले 1 साल से, आई थिंक वो निकल चुकी है. आप लोग देख पा रहे हैं what it is all about. How an honest officer was stopped from working on this case. How he was stopped from performing his duties towards a drug free nation. He has been harassed by his seniors. The tweets what we wrote, the contents what we sent, the document which you yes showed Varun, आपने जो दिखाया, it सब कुछ बोलता है वो document कि जो सर ने फेस किया है. And there was a reason why we were voicing out for the last 1 year. We were not fools. जैसे वरुण ने कहा कि हमें बिल्कुल 5 मिनट समझ में आ जाता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है. वी आर ग्रोन अप पीपल, वी आर अडल्ट्स, वी नो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है. वी अंडरस्टैंड. Okay, and that's the reason we stood by an honest officer. We stood by the truth, and the truth is in front of everyone today. किसने पैसे खाए, किसको कितने पैसे दिए, सब कुछ आपके सामने डॉक्यूमेंटेड है इस समय. And we were waiting for all of this. And if you remember, Varun, हमने एक email activity run की थी in the month of May against DDG ज्ञानेश्वर सिंह. ज्ञानेश्वर सिंह, ज्ञानेश्वर नहीं, ज्ञानेश्वर सिंह. जो हाँ, बिकॉज ये इनके जो लूप होल्स थे वो हमको तब से पता चल चुके थे. बट येस, वी वर लुकिंग फॉर समथिंग कॉन्क्रीट एंड ऑफिशियल व्हिच केम येस्टरडे. उस समय आई थिंक बिल्कुल बहुत फ्यू हैंडल्स हैड सपोर्टेड अस एंड दे सेड कि इनके पास तो प्रूफ नहीं है, ये लोग ये एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं. देयर वाज समथिंग फ्यूमिंग देयर, ब्रूइंग देयर. वी न्यू इट ऑल. तो अब कल आ गया ना सब, वो सब सबके सामने आ गया है. इट्स ऑल देयर. तो बस मैं यही सबसे कहूँगी कि प्लीज एनालाइज करें व्हाट एंड वेयर एंड हाउ ट्रुथ फ्लोज और उसके साथ चलें. सपोर्ट द राइट कॉज and be there for an honest officer. And this is not the end. The war has just begun. War zone, मैंने कल hashtag डाला था war zone. The war has just begun. Stand by Sameer. He needs all of us. He definitely needs all of us. The support we will render will only take us closer to Sushant Singh Rajput case. It's all interlinked. Remember this. Thank you, Varun. Sure. Thank you, Shweta. I'll definitely say a few things, but let's get Pradeep ji and Ayushi as well. Hello, Pradeep ji. Welcome, and please go ahead. Hello, Varun ji. Good afternoon. Good afternoon, sir. के टाइम पे शायद आफ्टरनून चल रहा है. मेरा तो नाइट है, मेरे तो 12 बज के रात की. इसीलिए मैं आपको आफ्टरनून बोलूंगा, गुड नाइट तो बोलना नहीं. हाँ जी.
Sure. And good morning to you and those who are listening from India. सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ. मेरा तो इवनिंग चल रहा है अभी, मेरा 6 o'clock 6 PM है अभी. घर के बत्ती भी ऑन कर दिया हम लोगों ने. एनीवे, द पॉइंट, समीर वानखेड़े के जो केस है ये तो अलग केस थी. इट वाज कनेक्टेड विथ and was part and parcel of is the murder crime scenario. क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में समीर जी आए थे इंक्वायरी करने. उसी सिलसिले में उसने वो जो ड्रग वाला जो गैंग था उनको पकड़ने गया, जहां पर एक एक आदमी लोग 1.5-2 लाख के टिकट खरीद के ड्रग पीने के लिए शिप पे गए थे. एंड एक्सीडेंटली देयर वाज ये बंदा बाप के बेटा मजे लेने के लिए गया था, बाप के बेटा. And that very incident when Samirji actually was an action, जो जो NCB कोई पेपर डॉक्यूमेंट बना के परमिशन लेके ऐसा करने वाला काम नहीं है. पुलिस का रेड होता है तो इंस्टेंट होता है. When there is information, they bring to the spot, ऑन स्पॉट एक्शन लेने पड़ते. और दूसरी बात मैं बोलूंगा, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज जो दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस. एक साथ दो आदमी को हम देखते हैं. एक के नाम है ज्ञानेश्वर सिंह, जिसने राजीव शुक्ला का चप्पल चाट के आगे बढ़ा है. उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन? कितने डॉलर का, कितने रुपीस का, कितने करोड़ों का ड्रग बस्ट किया इसने? क्या किया इसका? व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन? और दूसरे साइड पे समीर वानखेड़े, उससे 1000 गुना का ज्यादा काम किए हैं. सबको दिखाई देते हैं खुले आंखों में कि समीर वानखेड़े have done the marvelous job, the challenging job in spite of lots of opposition. बड़े बड़े हस्तियों को नींद हराम कर दिया था. हर दिन मॉर्निंग पे आके टीवी में बकता था वो नवाब, बोतल वाला नवाब. And they were trying to malign Sameer ji every day, each and every day. उसमें उसके जो काम था वो सफल नहीं हुआ. अभी तो बोतल वाला जेल के अंदर फंसा हुआ है. उनके मिनिस्टर भी जेल के अंदर है. जो फालतू बकता था वो आदमी भी जेल के, सामने वाला आदमी वो अभी जेल में है. So all the cabals basically in the jail. But as long as the movie industry is concerned, उसके लड़ाई चालू हुआ है. वो हम देख रहे हैं. जो मेरा पहले जो लेडी ने बात की है, I should thank you her. She said जंग अभी चालू हुआ है. जंग क्या है? जंग बहुत सिंपल है. एक आदमी है ड्रग वाला गैंग का, मूवी में भी वो बहुत पैसा कमाया है. जो नाचने वाला गैंग वाला आदमी है, मैं उसको हीरो नहीं मानता हूँ. बहुत पैसा कमाया है दाऊद के साथ मिलके. उसके बेटे फंस गया था. So to save his own son, he spread lot of money. He spent thousands of dollars each and every day. हर रोज $1,000 वो बांटता था. करोड़ों में वो इंडिया में खेला है पैसा. जो पैसा खाया है टीवी चैनल वाले लोग, और भी बहुत लोग खाए हैं. और ये शुक्ला फुकला के बारे में मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. ये इस लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के आदमी हैं. मे बी दे आर पावरफुल पर्सन फ्रॉम कांग्रेस गैंग. आई डोंट केयर अबाउट. ये राजीव शुक्ला और उनके साथ चट्टी पट्टे ये ज्ञानेश्वर सिंह कहाँ से एनसीबी के अंदर घुस गए, आई डोंट नो. आई वुड टुडे ask Mr. Amit Shah and the Prime Minister of India, clean the NCB management. NCB में गंदा आदमी को जगह नहीं है, इनको हटाइए पहले. दूसरे बात मैं बोलूंगा, सरकारी ऑफिसर लोग पब्लिक के रिक्वेस्ट में जब काम करते हैं तब भी रिश्वत लेता है. और ये आदमी तो रिश्वत लेने से भी बढ़ के बहुत गंदा काम किया है. He has tried to first of all destroy evidences. First of all, समीर जी ने जो आदमी को खड़ा किया था विटनेस में, दो आदमी था. एक था केपी गुसाई, है ना बरुण जी? केपी गुसाई. इसको इस लोगों ने उल्टा किया, पुराने केस में फंसा दी. नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लीगल सिस्टम. हमारे लीगल सिस्टम पे जब हम विटनेस के बारे में बात करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज पर एविडेंसेस एक्ट, कोई जो आदमी पहले जेल काट चुका है, नहीं तो कन्विक्टेड है, नहीं तो सस्पेक्ट है, वो भी विटनेस होके आ सकते हैं. एंड द विटनेस विल बी क्रॉस एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है दो साइड के जो लॉयर्स हैं उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. व्हेन ही इज अटेंडिंग द कोर्ट ऑफ लॉ, गिविंग हिज स्टेटमेंट्स,
After the coup, cross-examination, the judge and the jury or the court can decide whether the evidences or the statement of the evidence person is acceptable or have no validity. मगर इन लोगों ने क्या किया, उसके पहले ही इसको गोसाई को पीट पीट के हैरास करके जो अभी हम सुन रहे हैं इसको हटा दिया, जेल के अंदर डाल दिया इसको। और दूसरे जो एविडेंस था, जो जिसका नाम था प्रोवोकर सेल, उसको उसने फर्स्ट डे प्रोवोकेटेड हिम। ही इज अ वेरी सिंपल मैन, एक बाउंसर टाइप का आदमी था, गरीब आदमी था, 20-25 हजार का तनख्वाह होता है मुंबई में, और शायद उससे भी कम हो सकता है। इनको अगर आप करोड़ों पे दे दोगे तो बिक जाएगा। दे फर्स्ट आउट के जो मुंह था बंद करा दिया टू मेक हिम साइलेंस। उनको ऐसा कर दिया कि वो बात बोलना बंद कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, वी डोंट नो। After all, a news came in the newspapers and the TV media that suddenly he passed away, हार्ट फेल हो गया है। ये हार्ट फेल क्या है भाई? ये तो एक सुसाइड का तरीका था और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ही वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सम अदर वे टू पास अवे। तो सारी चीज के जिम्मेदार कौन है? ये ज्ञानेश्वर सिंह है। He was the owner of the NCB office in Mumbai. He was handling the whole thing. तो मेरे को सरकार के पास, मैं तो निवेदन करूंगा अमित शाह जी को, हमारे होम मिनिस्टर को, मैं निवेदन करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, ये ज्ञानेश्वर सिंह के ऊपर इंक्वायरी चालू करो। अगर इसने, मेरा आई डाउट ही हैज टेकन मनी, फ्री में तो काम नहीं किया है। ये मोटे चमड़े के जो ऑफिसर होते हैं ये फ्री में काम नहीं करते। मिनिस्टर का रिक्वेस्ट पे भी नहीं करेंगे, बीसीसीआई का वाइस चेयरमैन का रिक्वेस्ट पे भी नहीं करेंगे, और एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के नेता जो आज के मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं है उनके रिक्वेस्ट में तो करने वाला नहीं है। तो प्रोबेबली ही हैज गिवन some sort of benefit. Benefit is simple, cash money. तो bribe money, इसके ऊपर इनको इंक्वायरी डाल दो ज्ञानेश्वर सिंह के ऊपर, इनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का रेड कराओ, सारे इनको मनी ट्रेल निकालो। अगर पकड़ा जाए इनको पहले टर्मिनेट करो जॉब से, देन इसके बाद एनसीबी का केस खराब करने का और बॉम्बे के साथ हाथ मिला के ड्रग गैंग के साथ सपोर्ट देने के लिए इनके ऊपर दोबारा केस करो। इनके सारे एसेट्स, बैंक मनी, सारे उसको सीज कर लो। इनको भीख मांगे बना के रास्ता में कुत्ते के माफिक छोड़ो। आई एम वेरी एंग्री एट द मोमेंट, आई फील वेरी एंग्री, आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू से, अगर हमारे मोदी जी के जमाना में ऐसा भी हो सकता है तो ये बहुत बुराइयां है। समीर जी के माफिक ऐसा आदमी लाखों में एक आते हैं। ही इज एग्जाम्पल टू द न्यू जनरेशंस इन इंडिया, टू द न्यू एस्पिरेंट्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स। He is just like an idol. He is a living legend. उसको बदनामी करा जा रहा है। और कौन कर रहे हैं? गलत आदमी लोग कर रहे हैं, झूठे आदमी लोग कर रहे हैं। टीवी में सेटिंग्स है, 2-3 चैनल है, आप जानते हो, जिसको हम नेशनल चैनल बोलते हैं, जिसका TRP बहुत गिर गया है। एक इंग्लिश चैनल भी है उसका और उनका हिंदी चैनल भी है। These people are abusing the whole system. तो पहले तो ये जो NCB के जो ऑफिसर्स, they are in the connivance of the crime, to destroying the evidences, to destroying the witnesses, and to somehow giving relief to Mr. क्या बोलूं उसको, बाद में की ड्रग वाला हीरो, नाचने वाला, जिसको मैं हकला बोलता हूँ, हकला का परिवार को बचाने के लिए किया है। He should be penalized and he should be interrogated properly and should be fixed up. NCB में जो गंदा आदमी है सबको निकालो। This is my request. माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। मैं हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज इंटरवेंशन करिए। ऐसा गलत आदमी लोग अगर सच्चे इंसान को, लाखों में एक जैसा ऑफिसर है, उनको हैरास करते हैं तो उनको पहले आप जैसा करते हैं उसको करिए, उसको फिक्स अप करिए, उनका जॉब खत्म करिए, उनको जेल में भेजिए। सेट एन एग्जांपल दैट इंडिया इज रियली डूइंग समथिंग। 70 साल का कमाल दोबारा हम देखने नहीं चाहते हैं। आई डोंट वांट टू सी those type of nuisance anymore in the regime of मोदी जी। मेरे को तो लगता है इस डिपार्टमेंट को ठंडा कराने के लिए जोगी जी टाइप को किसी को चाहिए। शायद हमारे मोटे भाई राइट है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे को उनके ऊपर पूरा भरोसा है, मगर ही इज वेरी पोलाइट। इनके लिए डंडा मारने के लिए, ठंडा करने के लिए जोगी जी टाइप का कुछ किसी को जरूरत है। वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ करप्ट पीपल। इतना ही मैं बोलूंगा। और समीर जी के साथ हम लोग हैं,
we want justice for Samir Wankhede, respect to Samir Wankhede, and we want justice for SSR at the same time, and boycott Bollywood. Bollywood का वो गंदगी हम उसके अगेंस्ट में हैं. इसके बाद जो आएगा पठान जो भी आएगा उसको अफगानिस्तान आप भेज दो देखने के लिए. We are not interested to watch आपकी थर्ड क्लास मूवी. सिंपल बात है. Absolutely. At the moment, Varun ji, I am very well said. Thank you. Very well said. बहुत factual, and thank you so much again for bringing those facts. I think Shweta just wanted to add something. Shweta, please go ahead. Thanks, Varun. So I just wanted to add that action is going to be stringent on DDG Gyaneshwar Singh for what he has done, and under the SC Act इन पे सारे वो कंप्लेंट्स गई हैं, 50 पेजेस की कंप्लेंट्स गई हैं. NCSC ने ये एक्शन लिया है. 17 अक्टूबर को समीर सर ने ये कंप्लेंट डाली थी, एट्रोसिटी एक्ट जिनको हम कहेंगे, और 18 को ये एक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया, एंड 18 को ही ये सारे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे 7 से 8, वो जो न्यूज आई थी कि इन पे एक्शन लिया जाएगा, कि लैप्सेस थे आर्यन खान केस में, तो वो चीज होने वाली थी. बट देन ऑन टाइम NCSC फाउंड दैट ये एट्रोसिटीज काफी ज्यादा हुई हैं, क्योंकि सर की फैमिली पे अटैक्स हुए हैं, सर के पर्सनल असेट्स देखे गए, about the cash, about the bank accounts, about everything which was done by Gyaneshwar Singh, definitely done by him. He being the senior, उसने अपने पावर का बहुत मिसयूज किया है. तो अब ये इन पे जो कार्रवाई है बहुत ज्यादा कड़ी होने वाली है. So to everyone out here, just wait and watch. और मैं इतना ही कहूंगी कि पिछले 1 साल में समीर वानखेड़े सर ने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की हैं, उनकी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है गाइज, एंड वी डेफिनेटली नीड टू स्टैंड बाय एन ऑनेस्ट ऑफिसर. We have to be vocal for this pure soul who has been here for Sushant, who has been here for the nation, who has been really very diligent and been there for the country. So time for us to stand and show up. Thanks, Varun. Thank you so much. Yes, Ayush, please go ahead. और उसके बाद अभिषेक मैं लेता हूँ. Please go ahead, Ayush. नमस्ते सभी को. नमस्ते वरुण भाई, काफी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग. सब इस देश में ईमानदार लोगों की कोई जगह नहीं है. बेईमान लोग खाली बस राज कर रहे हैं. समीर वानखेड़े सर जब तक थे तब तक चीजें पकड़ थकड़ होती रही. बड़े बड़े ड्रग पैडलर पकड़े गए, न जाने कितने लोग पकड़े गए. अब उनके जाने के बाद ऐसा ठंडा पड़ गया है पूरा एजेंसी, स्पेशली NCB, कि ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं. जिसकी बड़ी वजह ये मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह. ये तो पूरे जैसे लगता है कि सबसे इन्हीं का राज चल रहा है, बाकी कोई नहीं इनके इर्द. दैट्स व्हाई कह सकते हैं कि हाँ कितने बड़े चाटुकार हैं. और राजीव शुक्ला से दोस्ती, वो राजीव शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी में भी है, वो कांग्रेस पार्टी जो 70 साल से उसे लूटती हुई आई है, करप्शन ये सब करती हुई आई है. और तो और कह सकते हैं कि जब तक इस देश में कानून ठीक नहीं होगा, ऐसे लोग ही राज करेंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा सड़ गल गया है. मिडिल क्लास जब फंसता है तो उसको सैकड़ों लॉ एंड ऑर्डर का डेफिनेशन समझा करके केस में फंसा देते हैं, जबकि जो रसूखदार होता है वो एक झटके में छूट जाता है. यही हमारा सिस्टम. Very sad but very true. Yeah. और मैं एक चीज यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा. अभी मुझे किसी ने एक लिंक भेजा है. Very sad to see how some of these newspapers, they're just waiting. वो वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो. एक काम करता हूँ मैं. Let me just bring this on the screen right now. Just see for yourself कि okay, I think I will keep this on the screen. ये है midday न्यूज़पेपर, और उन्होंने ये आज आर्टिकल डाला है.
Okay, I'll have to remove it 1 second. और इसकी heading पढ़ के basically it is so sad to see that these vultures are just waiting कि कुछ ऐसा हो और हम ऐसा कुछ छाप सकें. All right, here we go. So, Samir's 7 deadly sins. Imagine, this is the article जो आज न्यूज़पेपर में आ रहा है. ऐसा, I mean, what do I even say? Just because he has been attacked by the Bollywood cabal, तो अब main page पे, the front page of this newspaper says Samir's 7 deadly sins. From letting several suspects walk free to serious procedural lapse, here is how Officer Wankhede bungled the Aryan Khan probe, according to the vigilance report. So these were people who were just waiting for this to happen. नमस्ते ध्यानदेव जी, कैसे हैं आप? वेलकम. नमस्ते वरुण सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड. फॉर पीपल हु डोंट नो, ये है समीर वानखेड़े के फादर, ध्यानदेव वानखेड़े जी. नमस्ते Please. सब लोगों को मेरा नमस्ते बोलना, मेरी तरफ से, इंडिया के तरफ से मेरा हाँ जी. नमस्ते बोलना सब लोगों को. बिल्कुल. नमस्ते नमस्ते. नमस्ते नमस्ते मैडम. सर. नमस्ते सर. नमस्ते बॉस. तो बहुत सारे लोग नमस्ते. यहाँ पर ऑब्वियसली समीर नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड समीर्स ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, उसकी भी कोई वो देयर आर कोई दो राय नहीं है. वी ऑल नो हु समीर इज. इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज सो डिस्गस्टिंग टू सी किस तरह से समीर को, आपकी पूरी फैमिली को हरास किया जा रहा है कंटिन्यूसली जस्ट फॉर योर ऑनेस्टी. एंड प्लीज मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कहना चाहते हैं थोड़ा सा आप प्लीज शेयर करें हम सबके साथ. वुड लव टू हियर यू. मुझे तो थोड़ा सा कहने को भी तकलीफ होती है क्योंकि अभी तो सब्जुडाइज है पूरा, वो बोल भी नहीं सकते डिपार्टमेंट के बारे में. एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फादर ऑफ समीर वानखेड़े, मैं घर का एक मुखिया होने के नाते मैं घर का ही प्रॉब्लम बता सकता हूँ या समीर का प्रॉब्लम बता सकता हूँ. तो डिपार्टमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है और डिपार्टमेंट का मुझे कुछ मालूम भी नहीं है. लेकिन घर में जो प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद मेरे बेटे ने 16 इयर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया. आईबी में काम किया, एनआईए में काम किया, टीआरआई में काम किया और अभी एनसीबी में भी अच्छी तरह से काम किया. उसने कोई ये नहीं देखा कि ये कोई मिनिस्टर का बेटा है या गरीब का बेटा है या स्मॉल पेडलर है या बड़ा पेडलर है या कोई हीरो. कभी उसने ये नहीं किया. तो भी इतना एलिगेशन, इतना ये लोग लगा रहे तो उसके लिए एज ए फादर बहुत तकलीफ होती है. बिल्कुल बिल्कुल. और सिर्फ समीर के लिए मैं क्यों मैं तो, हमने तो देखा है किस तरह से आप न्यूज चैनल्स पे जगह जगह वो फाइल्स लेके पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं टू प्रूव. और बड़ी हैरानी की बात होती है कि आपसे प्रूफ मांगे जाते हैं या आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है कि आपका एट द एज ऑफ दिस मुझे प्रूफ मांगा जाता है. ये तो शर्म की बात है. ये तो गवर्नमेंट के लिए भी शर्म की बात है, ये एजेंसी के लिए भी शर्म की बात है. सबको भी, मेरे जैसे बुजुर्ग माँ बाप होंगे, अगर वो कोई ज्ञानेश्वर सिंह या कोई भी एजेंसी वाला कोई भी मेरे बेटे के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा करता है कि इसने कुछ एक्सटॉर्शन किया है, कुछ निग्लिजेंस किया है, जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का उसको प्राइज दिया है फिर 151 पुलिस ऑफिसर के साथ में, तो मेरे बेटे का इन्वेस्टिगेशन 16 ईयर से इसने क्रोर्स ऑफ रुपीस गवर्नमेंट को दिया. क्रोर्स ऑफ रुपीस का गोल्ड, ड्रग सब पकड़ा. तभी किसने ने बोला कोई इन्वेस्टिगेशन गलत था मेरे बेटे का. शाहरुख खान के बेटे के ही बारे में, नवाब के जवाई के ही बारे में
मेरे बेटे का कैसा हो सकता है? और जब ये एलिगेशन लगा रहा है जो एसआईटी का जो मेन है ज्ञानेश्वर सिंह, वो भी तो उस टाइम में मेरे बेटे के साथ ही काम कर रहा था वही केस में, तो उस टाइम में हो सकता था समीर ऐसा ऐसा ये रॉन्ग जा रहा है अपना, उस टाइम में क्यों नहीं बोला ये? तो अभी क्यों ये बोल रहा है? ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ये एजेंसी की साबिक किस लिए काम करे हम लोग। अगर एक अच्छा नागरिक के लिए जो देश सेवा सच्चे दिल से करना चाहता है तो उसके लिए कैसा काम करे? सब तरफ से टॉर्चर अगर होगा तो अकेला आदमी ठीक है, मेरा बेटा शेर है, शेर की तरफ से रहेगा, लायन की तरफ से जिएगा, लेकिन हारेगा नहीं हम लोग। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कहाँ तक फाइट करें हम लोग, किससे किससे फाइट करें। बिल्कुल, और बहुत बुरा लगता है एज अ सिटीजन, एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, हमें ये देख के कितना अजीब और बुरा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब, तो आगे जो फ्यूचर जनरेशन में जो आईपीएस, आईआरएस, जो सिविल सर्विसेज जिसमें भी जाना चाहेंगे, वो लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि व्हाट, अगर आप ऑनेस्ट हो बेटा तो आप सफर करोगे, आपकी फैमिली सफर करेगी। अगर आप करप्ट हो, आप पैसा खाओगे, हमारी बात सुनोगे, हमारे साथ रहोगे, देन यू विल ग्रो। आप पीएस बनोगे और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के आगे पीछे घूमोगे, आपको बॉलीवुड और हर किसी के साथ। सो दिस इज द, वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल सेटिंग कितनी गलत हो रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए। दिस इज वेरी बैड सिचुएशन वरुण साहब, इधर ये एजेंसी का बैड सिचुएशन है। जो इन्वेस्टिगेशन करता हो वो तो कोई मीडिया में लीक नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का कोई सबमिशन हो, कोई रिपोर्ट सबमिशन, तो मीडिया में तो कोई नहीं देता है, ये तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाना चाहिए कोर्ट में, या कंसर्न एजेंसी का हेड होता है उसके पास जाना चाहिए। तो ये तो भाई साहब तो सब पूरा पहले जून से ही सब ये करता है पूरा मीडिया को कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वैसा समथिंग इज देयर। ये कुछ फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है इसमें। आई नो, पूरा सिस्टम ही वही ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर मेरा बेटा अगर गलत कुछ करता है इन्वेस्टिगेशन, तो कोर्ट ने 21 दिन को कंसर्न पर्सन को क्यों ऐसा बेल नहीं दिया? कोर्ट ने बोलना चाहिए था योर इन्वेस्टिगेशन इज रॉन्ग, इज ए क्लियर, कुछ नहीं किया इसने, तो कोर्ट ने उसको क्यों 21 दिन तक जेल में रखा? उस टाइम में ज्ञानेश्वर उस टाइम में जो केस चल रही थी क्रूज पे, उस टाइम में कंसर्न अभी का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो दिल्ली का है, वो भी तो साथ में था समीर के। प्रॉब्लम तो यही है, साथ में था, चार्जशीट पे बॉम्बे में नाम था सब। वो जब दिल्ली में जाने के बाद आफ्टर सम मंथ्स ईयर्स एगो, तो चार्जशीट से कैसा नाम इन लोगों का हुआ, कैसा अपना निकाला 6 लोगों को, जो मेन लोग है वो किस तरह से निकल गए चार्जशीट से। तो कुछ बड़ा समझने के बाहर की बात है ये। बिल्कुल। गिरिजा जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज। I was saying that even the conditions on which Aryan Khan was let out, they were so unusual that everybody said that has never been seen, that kind of conditions. So it was very clear. So many times, such powerful legal this thing they had, people who are fighting for them, but still they did not get relief. And finally, when they got also, it was very clearly stipulated under what conditions he is being let out, because they suspected certain things, right? And they wouldn't have, the court wouldn't have given that without sufficient evidence. Why would they have kept him? Yes, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभिषेक, आप भी कुछ कहना चाहते थे शायद, प्लीज गो अहेड। जी सर। समीर सर के फादर जी, नमस्कार आपको। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर बहुत अच्छे हॉनेस्ट ऑफिसर हमें दिए हैं, और हम नहीं चाहते कि उनको उनके ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगाया जाए, जैसे ज्ञानेश्वर सिंह जैसे कि आरोप लगाए हैं समीर सर ने उनके ऊपर। तो ऐसे हॉनेस्ट ऑफिसर को तंग किया जाएगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी इंडिया तो हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेगी कि हमारे हॉनेस्ट ऑफिसर को टारगेट किया जाए। और मैं तो सर कंटिन्यूसली डिजिटल एक्टिविटी कर रहा हूँ,
और श्वेता दीदी भी साथ हैं, तो हम सब एक्टिविटी करते हैं। आज भी मैंने एक्टिविटी की है समीर सर के सपोर्ट में, हम रोज करते हैं। और हम अपील करेंगे पीएमओ एचएमओ से कि ऐसे जो है ऑफिसर, इनको मौका दिया जाए और जो गलत कर रहे हैं उनको निकाला जाए। और जो थ्रेटन कर रहे हैं हमारे हॉनेस्ट ऑफिसर को, और इनको बाहर निकाला जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अमित शाह जी से हमारी विनती है, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती है कि ऐसे जो हमारे ऑफिसर को तंग करते हैं, हॉनेस्ट ऑफिसर को, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सर आई विल वानखेड़े, मैं कहना चाहता हूँ, अभी ऐसे ऑफिसर्स कैसे इंडिया में तैयार हो गए, कैसा आगे कुछ काम करेंगे? खाली यही प्रॉब्लम है कि आगे कैसा आजादी मिलने के बाद अगर कोई एक पेट्रोइज्म के नाद में लग के अगर कोई देश सेवा करना चाहता है तो ये कैसा करेगा? कोई आईपीएस आईएएस कोई भी इसका हो, कैसा करेगा काम? एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, आपने पहले भी सही बोला सर कि अगर ऐसे होगा तो मैं पहले भी देख रहा था सर, जब स्टार्टिंग में नवाब मलिक ने टारगेट किया समीर सर को, तो मैं आपकी न्यूज को देख रहे मेरे को रोना आ रहा था उस टाइम कि भाई सर बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को किस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर बेटा काम करता भी है तो उनको टारगेट करते हैं, उनके कपड़ों के बारे में सवाल उठाते हैं, उनके बैंक के बारे में सवाल उठाते हैं। तो ये हरगिज निंदनीय है, ये हमें शर्म आती है। जी। और यहाँ तक बॉस आपको तो ये समझाओ कि उसको डेथ है उसको पुलिस ने, बॉम्बे पुलिस ने 24 आवर्स उसको संरक्षण दिया है तो भी इन लोगों ने उसको चेन्नई ट्रांसफर किया। अगर मेरे बेटे को कुछ भला बुरा हुआ तो वो ही रिस्पॉन्सिबल, वो जवाबदार है, सरकार जवाबदारी लेगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो कौन जवाबदार है? बिल्कुल। तो सर हम आपके बेटे के साथ हैं, लास्ट तक हम आपके बेटे के साथ, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम आपके बेटे के साथ हैं और समीर सर को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, हम लास्ट तक करेंगे। चाहे लोग हमें कितना भी टारगेट करें, चाहे कितनी भी हमारी ट्रोलिंग करें, हम समीर सर के साथ और साथ ही रहेंगे हमेशा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तरफ से सबको नमस्कार बोलना, सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना। आप अच्छे रहो, सुखी रहो, जिंदगी में आराम से रहो, कोई आपको तकलीफ ना हो, बस बिल्कुल। और मैं चाहूंगा बिफोर यू गो, दो लोग और हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। श्वेता प्लीज गो अहेड एंड देन प्रदीप जी आप भी जरूर बोले। श्वेता प्लीज। जी थैंक्स वरुण। नमस्ते अंकल जी, आपको प्रणाम मेरा। नमस्ते बेटे। नमस्ते। तो बस मैं यही कहूंगी कि आपको मेरा प्रणाम है कि आपने इतने यानी शौर्यवान बेटे को जन्म दिया और इतना वो देश के लिए करते हैं, और बिल्कुल शत नमन है आपको। एंड जैसे कि अभिषेक ने कहा, हम हमेशा सर के साथ खड़े हैं, फैमिली के साथ खड़े हैं, अडिग खड़े हैं, हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। और कोई भी विपदा आती है हम डेफिनेटली खड़े हुए हैं, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे और फैमिली से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। प्रदीप जी प्लीज गो अहेड, आप भी कुछ कहें। हाँ जी, मेरे को तो ध्यानदेव जी, आपको मैं क्या बोलूं, आपको मैं जैसे मेरे बड़े भाई लग रहा है। यू आर ए ग्रेट फादर। आप देश को ऐसा बेटा दिया है, यू आर ए ग्रेट फादर। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। नमस्कार जी। लेकिन उसका भी बहुत इसमें ही है, वो अलग किस्म का इंसान है। जब मेरा बेटा है, लेकिन इतना रात दिन 24 आवर्स घर की परवाह नहीं करता, 24 आवर्स वो ड्यूटी का परवाह करता है। मैं इसीलिए थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा आपके बेटे। देखिए, पहले तो समीर जी एक रोल मॉडल है इंडिया में। जितने आईएएस है, आईपीएस है, जो भी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर, सक्सेसफुल जितने सर्वेंट हैं, सबके लिए समीर जी एक रोल मॉडल है। हमारे नौजवान लोग हैं उनके लिए रोल मॉडल है। सिर्फ इंडिया के, मैं तो इंडिया के थोड़ा बाहर हूँ। हाँ जी। तो विदेश में भी उनके इतने इनके जो क्या बताऊं फैन हैं, इनके लाइक करने वाले हैं। बच्चे लोग के पिताजी कहते हैं, माँ घर में कहते हैं कि ऐसा बेटा बनो, ऐसा बनो। सही बात है, सही बात। और दूसरी बात मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा, कंपेयर करूंगा से इनके साथ, ये बदमाश आदमी लोग के जो साथ देते हैं उनके बारे में भी बोलूंगा। समझ लीजिए समझ लीजिए ज्ञानेश्वर सिंह है, ये एक ऑर्डिनरी ऑफिसर है, ये काठपुतली के काम कर रहे हैं।
क्या कॉम्प्रोमाइज किया वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसके बारे में एसआईटी बैठेगा, इसके पीछे ईडी लगेगी, मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपके बेटे के बारे में एक चीज मैं बोलने चाहता हूँ सारे बॉलीवुड को, उनके अगर कोई एजेंट यहाँ पर सुन रहा है तो उनके लिए मैं बोलूंगा, समीर 1000 करोड़ से भी ज्यादा ड्रग को पकड़ा दिए हैं, 10,000 वैल्यू ज्यादा होगा उसका। और ये ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या किया है आप लोग ढूंढ कर लो, कुछ भी नहीं किया है। तो ये एक साइड पे ये कठपुतली ऑफिसर है जो दबाव पे आता है, नहीं तो रिश्वत पे आता है और उनके लिए काम करते हैं। और दूसरे साइड समीर जी हैं, अगर समीर जी रिश्वत लेने के लिए तैयार होते था ना तो उनको तो हर साल देने के लिए इस लोग हाजिर हो जाते थे घर पे आपका। तो रिपीट भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। अगर समीर जी बोलते हाँ तू दे दे मेरे को, पैर में 100 करोड़ आपके घर पे दे के आता था इस लोग। तो ओनली उसने एक ही गुनाह किया समीर जी ने, he has done only one mistake, he didn't compromise with the criminals, with the corrupt people, with the corrupt system। तो इसीलिए मैं मांग करता हूं हमारे भारत सरकार से, मोदी जी से, हमारे होम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो हाथ दे रहे हैं अमित शाह जी, उनको मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में मानता हूं। मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, बॉलीवुड को बॉम्बे को एड्रेस करने वाले जो छोटे मोटे नेता हैं उनको हटाइए। पर्सनालिटी देयर, bring a very strong personality there to address the system। अगर आपके पार्टी में से 2-4 नेता को बलि देना चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, मगर बीजेपी का सरकार और भी आगे जाएंगे और ऊपर जाएंगे और गंदगी साफ होगा, जनता आपके साथ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। थैंक यू ऑलराइट लास्ट प्लीज आयुष प्लीज गो अहेड। हाँ बस नमस्ते अंकल, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपके घर में एक ऑनेस्ट ऑफिसर है समीर सर, जिनके जो सारे रोल मॉडल उनके जैसा फॉलो करना चाहते हैं। बात ऐसी है कि हमारा देश है ही ऐसा कि जहाँ पे ये ज्ञानेश्वर सिंह टाइप लोग सिर्फ राज कर सकते हैं, समीर सर जैसे लोग दब जाते हैं। इसीलिए बहुत कम ऑनेस्ट ऑफिसर पैदा हुए हैं इस धरती पे। लेकिन हैट्स ऑफ तो समीर सर, जिनकी एफर्ट की वजह से पकड़ धकड़ हुई, बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स पकड़े गए। लेकिन कुछ होता है ना, जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो थोड़ी कठिनाइयां आती है, तो वही बीच में ये सब कांटा पैदा हो गए, जिसकी वजह से समीर सर थोड़ा डाउन पड़ गए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज्ञानेश्वर सिंह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऑलराइट थैंक यू एवरीवन। मैं कहूंगा ध्यानदेव जी पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए, शेयर करने के लिए। हाँ जी प्लीज। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस प्लीज गो अहेड गिरिजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच। यस गिरिजा जी आप। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी दीपावली आ रही है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। मोस्ट वेलकम टू इंडिया। इंडिया में भी आते रहो, अच्छा लगता है हमको। अभी वरुण इतने दूर है तो थोड़ा ये भी होता है तकलीफ, आ जाओ थोड़ा इंडिया में आ जाओ, अच्छा लगता है, आप हमारे हैं। बिल्कुल मैं आऊंगा अंकल, मैंने प्रॉमिस भी किया है समीर को भी, क्रांति जी को भी, एंड यू नो आई विल डेफिनेटली बी देयर। अब जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी। सर ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू सर, थैंक यू बाय। थैंक यू ऑलराइट Varun, yes गिरिजा जी प्लीज गो। I just want to say that, it is like the whole situation is like, Ram ji, Sita ko to le gaye Ravan. Ram ji goes and gets Sita back. उसके बाद तुम पहले नोटिस नहीं भेजा, हनुमान को कैसे भेजा, ऐसा राम सीता को लेके गया, वहां था और लेके आया, एवरीथिंग प्रूफ इज देयर, but nobody is interested in that. They are all interested in how did you send Hanuman, how did you get the squirrels, how did you go here, ऐसा पीछे पड़े। Everything is so clear in front of us, so we don't have to worry, truth will come out. But like Shweta ji says, all of us have to be strongly there with him, show solidarity, and whatever others troll, we don't have to get perturbed, don't take it personal. We all understand that everybody is a paid stooge, so we feel pity for them, pray to God, give them solace, and give them sort of
understanding what they are doing, that they are standing by false things and where it is going to take them, and give them salvation. We just do our part and just Absolutely. not get worried. Absolutely. Very well said. Very well said. Absolutely. And I will wrap this up. It was definitely very special to see him on this screen. I did not anticipate कि वो आएंगे, but बहुत अच्छा लगा उनसे सुन के, उनसे बात करके भी. And he was planning to come last year, but somehow last year हम उनसे बात नहीं कर पाए थे. But आज एक बार फिर से एक father again came out to stand for his honest son, officer of this country. And really very very sad to see, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि बताओ एक 70+ year बोल भी old. नहीं सकते. The situation is so much like, he's Yeah, torn exactly. between two loyalties, right? You are a government servant, you have been a government servant, and your son is, it is all subjudied, so you cannot talk about it. But he is going through so much pain. It is really very painful. Nobody should go Very through this. Absolutely. So तो अच्छा लगा उनसे बात करके भी. And obviously we'll keep on supporting all the such causes, such people. And again, before I end this session or this space, I want to remind you all, is Saturday ko once again Girija ji is coming up with the next session, which will be up on YouTube very soon. And that she sent me a message, and I was so like glad to see that. And maybe you should share that, Girija ji, the impact that your sessions are making on people. Okay. Thank you so much. Actually, after the last session, we are receiving calls from people about that. There are mothers who are saying that their sons have been affected, or they suspect that they have. How to go about it? They make them watched it. I made them watch, and then again came back to us asking for what all they can do. So what these people did, they are sharing with them, and they're coming back to them saying what works and what doesn't work. So counseling is going on now for many parents have come up, and Right. one or two addicts have also come up saying that I'm going through this, and your courage and conviction that I can also makes me feel that I can also do it. I've tried several times, I couldn't do it. So we are so indebted, Varun, for this channel, and to all the viewers who are here for supporting this. And we next week it is about digital addiction. Never think that it is something small. After all, we all think it is just a small thing in the child's hand. How can it hurt him or you? But how it hurts very badly families, health, financial, as well as other kind of situations. We will discuss that on this Saturday. So please, all of you, join. Sure, Thank you so sure. much. And I might even join, because अभी 2 हफ्ते का मैं digital disconnect से आया हूँ, and it was like a retreat. I can't even tell you how like the entire life मेरी change हो गई in the last 2 weeks I know. when I completely disconnected myself. Even though 100% is not possible, but still I think I was close to about 90% disconnected, and that really made a lot of difference. So maybe we'll share some. I'll also try to join. So thank you again, Girija ji, for doing this, and thank you so much, Pradeep ji. अगर जाते जाते अब कुछ आप कहना चाहेंगे, please go ahead, and then Abhishek, anything last words you want to say? नहीं, मेरे को बस एक लाइन बोलना है. समीर जी is a role model to India, just not as a servant, as not just like an employee or as a working person. पूरे देश के लिए एक भविष्य, न्यू जनरेशन का फ्यूचर के लिए एक भविष्य है. He's a service leader. Yes, he is a genuine leader. Service leader, yes, absolutely. A hero, he's a alive hero. He is a roaring hero. तो उनके लिए हम के सपोर्ट हम चालू रखेंगे. और ये गंदगी जो फैला रहे हैं, they are in the wrong side. उनके साथ झूठा है, सच्चाई नहीं है. So they are the liars. उनके हाथ में वाला ही है. That's all. समीर जी का जय होगा, और हम उनके साथ हैं. इतना बोलकर I would finish here. Thank you so much, एक बार फिर प्रदीप जी. Yes, Abhishek, क्या कहना है? थैंक यू वरुण सर फॉर दिस सेशन. एंड आपको मैंने बताया था पहले भी कि सर हम डिजिटल एक्टिविटी आज फिर से करेंगे, तो आप प्ले कार्ड वगैरह कर देना रेडी. तो हम सब फिर से समीर सर के सपोर्ट में आए हम सब. और वरुण सर का मैं देख रहा हूँ, वरुण सर भी काफ़ी टाइम के बाद आज आए हैं, तो
वरुण सर थैंक यू फॉर सेशन एंड गिरिजा मैम को तो रोज देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो गिरिजा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी ऐसे करते रहें वर्क, और हम सब जीतेंगे एक ना एक दिन। सुशांत के केस में भी हम जीतेंगे और समीर सर केस में भी हमारी जीत होगी। धन्यवाद वरुण सर। हमेशा जीत। Absolutely. Absolutely. Satyameva Jayate. Thank you so much, everyone, and feels good to be back. We'll continue to roar, we'll continue to talk more, and we'll continue to stand for what is right and stand against wrong. So thank you so much. Diwali aa rahi hai. Let's spread some cheer. Let's spread some happiness, in such times, and let's all, pray together. कि सुशांत को भी justice मिले. Officers like Sameer also get the support and justice as well. So thank you so much. Hello, Venkatji. After a long time, hope you're doing well. Good to see you in the chat. All right, take care, everyone. Good night and stay blessed. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, Varun. Bye-bye.